آداب عرض ہے MCN اردو نیوز میں آپ کا خیر مقدم۔ ناظرین، میں ہوں قاضی محی الدین۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھانے سے پہلے آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں آج کی خاص خبروں پر۔ اورنگ آباد اسمارٹ سٹی بورڈ کی اہم میٹنگ منعقد۔ میونسپل کمشنر امول ایڑگے کو اسمارٹ سٹی ڈیولپمنٹ کمپنی کا ڈائریکٹر مقرر کرنے سمیت دیگر کئی تجاویز کی گئی منظور۔ آئندہ 25 جولائی کو سٹی اسٹریٹ وینڈرز کمیٹی کے 8 اراکین منتخب کرنے کی جائے گی رائے دہی۔ انتخابات کی تیاریوں کا الیکشن آفیسر و ڈپٹی میونسپل کمشنر اپرنا تھیٹے نے لیا جائزہ۔ ووٹر سے پرامن طریقے سے رائے دہی کا عمل مکمل کرنے کی گئی اپیل۔ میئر اور اسٹینڈنگ کمیٹی چیئرمین کے حلقہ انتخاب میں جاری سیاست کے سبب مقامی ساکنان کو پریشانی کا سامنا۔ علاقے میں پانی کی قلت کے سبب پہلے ہی ہے ساکنان پریشان۔ سپلائی لائن پر والو بٹھانے کی متاثرہ ساکنان نے کی سخت مخالفت، میونسپل کمشنر سے کی نمائندگی۔ اور لٹل فلاور اسکول میں پیش آئی سنسنی خیز واردات۔ ٹی سی حاصل کرنے آئے سابق طالب علم نے ایک ٹیچر پر کیا جان لیوا حملہ۔ شدید زخمی حالت میں متاثرہ ٹیچر کو گھاٹی اسپتال میں کیا گیا شریک۔ سی سی ٹی وی فوٹیج کی مدد سے پولیس حملہ آور کی کر رہی ہے تلاش۔ خبریں تفصیل سے۔ اورنگ آباد اسمارٹ سٹی بورڈ کی ایک اہم میٹنگ آج میئر سمیر راجورکر کی قیادت میں منعقد کی گئی۔ اس موقع پر میونسپل کمشنر امول ایڑگے کو اسمارٹ سٹی ڈیولپمنٹ کارپوریشن کا ڈائریکٹر مقرر کرنے سمیت دیگر اہم تجاویز پر تبادلہ خیال کیا گیا اور کئی تجاویز کو منظوری دی گئی۔ اورنگ آباد اسمارٹ سٹی بورڈ کی اس میٹنگ میں ڈپٹی میئر راجندر جنجاڑ، اسٹینڈنگ کمیٹی کے چیئرمین انیل مکریے، اپوزیشن لیڈر عبدالسمیر ساجد اور میونسپل کمشنر امول ایڑگے شریک تھے۔ امداد بازآبادکاری، ریونیو اور جنگلات محکمے کی پرنسپل سیکریٹری ونیتا سنگھل نے ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے اس میٹنگ میں شرکت کی۔ میٹنگ میں مختلف انتظامی اور ترقیاتی تجاویز پر تفصیلی غور و خوض کے بعد بورڈ اراکین نے متفقہ طور پر منظوری دی۔ میٹنگ میں اورنگ آباد میونسپل کارپوریشن کے کمشنر امول ایڑگے کو اورنگ آباد اسمارٹ سٹی ڈیولپمنٹ کارپوریشن لمیٹڈ کے ڈائریکٹر کے عہدے پر مقرر کرنے کی منظوری دی گئی۔ اسی طرح اتم چوہان کی اسمارٹ سٹی کمپنی کے چیف فائنانس اینڈ اکاؤنٹس آفیسر کے طور پر تقرری کی بھی منظوری دی گئی۔ اس کے علاوہ سنت تکارام ناٹیہ گرہ اور مٹمٹا چڑیا گھر یعنی زولوجیکل پارک منصوبوں کے لیے اسنیہا نائر اور کرن آڑھے، جبکہ ICCC منصوبے کے لیے فیض علی کی 6 ماہ کی مدت کے لیے تقرری کی تجویز بھی منظور کی گئی ہے۔ اس میٹنگ میں یہ فیصلہ بھی کیا گیا کہ اسمارٹ سٹی منصوبے کے تحت شہر میں نصب CCTV کیمرے آئندہ 6 ماہ تک اورنگ آباد میونسپل کارپوریشن کے زیر انتظام ہی فعال رہیں گے۔ اس کے بعد متعلقہ CCTV نظام کے آپریشن، دیکھ بھال، مرمت اور دیگر ضروری امور کی ذمہ داری پولیس ہیڈ کوارٹر کو منتقل کر دی جائے گی۔ AMC انتظامیہ کی جانب سے آج عام خاص میدان پر شجرکاری کی گئی، جہاں میونسپل کمشنر امول ایڑگے اور مجلس اتحاد المسلمین کے ریاستی صدر و سابق MP امتیاز جلیل سمیت اپوزیشن لیڈر و دیگر کارپوریٹرز کی موجودگی میں مختلف اقسام کے 600 پودے لگائے گئے۔ AMC انتظامیہ کی جانب سے منعقدہ اس شجرکاری تقریب میں میونسپل کمشنر امول ایڑگے، سابق MP و MIM کے ریاستی صدر امتیاز جلیل اور دیگر معزز مہمانوں کے ہاتھوں 600 پودے لگائے گئے۔ اس پروگرام میں اپوزیشن لیڈر سمیر عبدالساجد سمیت تمام کارپوریٹرز، عہدیداران اور کارکنان کی بڑی تعداد موجود تھی۔ اس موقع پر مختلف محکموں کے عہدیداران نے بھی شرکت کی، جن میں چیف سینیٹیشن آفیسر انیل جادھو اور پولیس افسران SI گوتم کامبلے اور PI سرفراز خان بھی شامل تھے۔
शजकारी मुहिम के दौरान सुपरवाइज़र सलमान खान, उमर खान और अब्दुर्रहमान भी अपनी जिम्मेदारियों को निभाने के लिए वहां मौजूद थे। इस मुहिम के तहत पौधे लगाने का ये सिलसिला आइंदा भी जारी रहेगा ताकि शहर को सरसब्ज और महफूज बनाया जा सके। नगर शहरामध्ये आपण महानगरपालिकेच्या वतीने सर्व प्रभागामध्ये आपण वृक्षारोपण करत आहे। माझी वसुंधरा अभियानामध्ये सुद्धा आणि शहरामधील हरित पट्टा वाढवावा म्हणून आपण वृक्षारोपण करत आहे। त्या वृक्षारोपणाअंतर्गत आपण आमखास मैदानावरती आज 600 झाडांचं वृक्षारोपण आपण करत आहे। त्याचा शुभारंभ आपण सुरू केलेला आहे। माझं महानगरपालिकेमधील सर्व नागरिकांना नम्र आव्हान आहे की आपल्याला शक्य आहे तिथे आपण झाडं लावावीत, झाडं जगवावीत आणि आपल्या शहरामधला हरित पट्टा आणि ऑक्सिजनचा सप्लाय करणारा आपला ग्रीन बेल्ट वाढवण्यासाठी सर्वांनी प्रयत्न करावे। सर, यहाँ पर बहुत सारे लोग कचरा फेंकते। तालुका कन्नड़ के चनकवाड़ी गांव के ग्राम सेवक का मकामी साकिनान के एक ग्रुप की शिकायत पर तबादला कर दिया गया, लेकिन दूसरा ग्रुप उनका तबादला रुकवाने के लिए सरगर्म हो गया है और दो ग्रुप आमने सामने दिखाई देने लगे हैं। तालुका पैठन के चनकवाड़ी गांव में ग्राम सेवक के तबादले के मामले पर दो ग्रुप आमने सामने आ गए हैं, जिसके बाद इलाके में कशीदगी का माहौल पैदा हो गया है। ख़ास बात यह है कि दोनों ग्रुप शिंदे शिवसेना के रुकन असम्बली विलास भुमरे के करीबी हामी समझे जाते हैं। इसीलिए इस तनाज़े की पूरे ताल्लुक़े में बड़े पैमाने पर चर्चा हो रही है। पैठन शहर से कुछ फासले पर वाक़ चनकवाड़ी में ग्राम सेवक प्रशांत पाटिल गुज़िश्ता 2 बरसों से खिदमत अंजाम दे रहे हैं। गैरान ज़मीन मामले पर तजावुज़ात के मसले को लेकर समाजी कारकुन संतोष बूथे और उनके हामियों का ग्राम सेवक प्रशांत पाटिल के साथ तनाज़ा पैदा हो गया, जिसके बाद संतोष बूथे ने अपने हामियों के साथ पैठन पंचायत समिति दफ्तर के सामने ग्राम सेवक के तबादले के मुतालबे पर गैर मुय्यना मुद्दत की भूख हड़ताल शुरू की थी। इस एहतजाज का नोटिस लेते हुए ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर मनोरमा गायकवाड़ ने ग्राम सेवक प्रशांत पाटिल के तबादले के अहकामात जारी कर दिए। ताहम इस फैसले की मुखालिफत करते हुए चनकवाड़ी की सरपंच मनीषा भगवान कुबड़ी, नायब सरपंच गौतम गायकवाड़ और उनके हामियों ने तबादला मंसूख करने का मुतालबा करते हुए पंचायत समिति को एक तहरीरी मेमोरेंडम पेश किया। इस मामले के बाद गांव में 2 वाज़ेह ग्रुप बन गए हैं। एक ग्रुप ग्राम सेवक के तबादले को बरकरार रखने के हक़ में है, जबकि दूसरा ग्रुप इस तबादले को मनसूख करने का मुतालबा कर रहा है। गुज़िश्ता 1 माह से इस मसले पर गांव में कशीदगी और बेचैनी का माहौल बरकरार है। पीर के रोज़ दोनों ही ग्रुप्स ने अपनी अपनी डिमांड्स के हक़ में दोबारा पैठन पंचायत समिति दफ्तर के सामने गैर मुय्यना मुद्दत की भूख हड़ताल शुरू की। बाद अज़ा हुक्काम ने दोनों फरीक़ों का मौक़िफ़ सुनने के बाद जल्द समाअत करवाने की तहरीरी यकीन दहानी कराई, जिसके बाद दोनों ग्रुप्स ने अपना एहतजाज ख़त्म कर दिया। अब इस मुतनाज़ा मामले में इंतज़ामिया और रुकन असम्बली विलास भुमरे क्या मौक़िफ़ इख्तियार करते हैं और ग्राम सेवक के तबादले के बारे में हतमी फ़ैसला क्या होता है, इस पर न सिर्फ चनकवाड़ी बल्कि पूरे पैठन ताल्लुक़े की नज़रें मरकूज़ हैं। आमच्या या गावाच्या आंदोलनाची पार्श्वभूमी अशी आहे की आमच्या येथील ग्रामसेवक पाटील साहेब यांची बदली न करण्यात यावा या उद्देशाने आम्ही बसलेलो आहोत। कारण आम्हाला काही माहिती नसताना सुद्धा व्हिडिओ मॅडमने त्यांची बदलीची ऑर्डर काढली आहे आणि ते पारदर्शी काम करतात। आणि जर समजा आज ते ग्रामसेवक गावातून गेले तर आमचे जे कामं आहेत, सध्या चालूचे कामं आहेत प्रगतीपथावरचे, ते बंद होतील। गोरगरिबाच्या घरकुलाचे प्रश्नाचे आताच इतके दिवसापासून आता जे बजेट आलं आहे कुठंतरी पडायचं आहे तर त्यांना विलंब लागत। त्याकरता या ग्रामसेवकची बदली न करण्यात यावा। त्याच्या मागे काहीच म्हणजे ग्रामसेवकची बदली का करतात, कशासाठी करतात, आम्ही सारी बॉडीनी त्याच्या पाठीशी उभा आहे। त्याचं कोणतंच गलत काम झालेलं नाही। आतापर्यंत त्यांनी जे काम केले ते पारदर्शी कामं केले। जर समजा तुम्हाला कोणतं असे कोणाचेच काम आवडले नाही, जे लोक इथं बसले आहेत ते उगा आता शासनाला काहीतरी दिशाभूल करून हे आपले त्यांचे म्हणजे अनलिगल काम हे करण्यासाठी त्याला ग्रामसेवकला बळी पाडतात आणि विनाकारण त्याच्या पाठीमागं लागून त्याची बदली करावा, असं करावं, असे काहीतरी
धोताण त्याच्या पाठीमागं लावून त्याच्या विनाकारण आज जवळपास 2 महिने झाले आमच्या गावाच्या कामामध्ये सारे अडकून पडले आहेत. हे आम्ही सुद्धा याच्या अगोदर व्हिडिओला सुद्धा निवेदन दिले आहे किंवा हा ग्रामसेवक आमची पूर्ण बॉडी त्याच्या पाठीमागं आहे. तरी सुद्धा जर समजा आमची बॉडी त्याच्या पाठीमागं आमचे गलत जर समजा ग्रामसेवक गलत असेल तर बॉडी सुद्धा गलतच असतं ना काही. तर आम्ही चोऱ्याच केल्या नाही तर आम्ही हे करणार कसे तुमच्या त्या ग्रामसेवकला आणण्या होऊन देऊ कसे. हे एवढंच माझं सांगणं की बीडीओ मॅडमला विनंती करून की आमच्या त्या ग्रामसेवकच्या आहे त्या ठिकाणी कार्यरत राहून द्यावा एवढीच विनंती करून मी माझी बाईट संपवतो. सिटी स्ट्रीट वेंडर्स कमेटी के 8 अरकान के लिए आइंदा 25 जुलाई को रायदही का अमल मुकम्मल किया जाएगा. लिहाजा इलेक्शन रिटर्निंग ऑफिसर व डिप्टी म्यूनिसिपल कमिश्नर अपर्णा थेटे ने इंतखाबात के लिए की गई तैयारियों का जायज़ा लिया और स्ट्रीट वेंडर्स की मुख्तलिफ जमातों से अपील की कि वो पुरअमन तरीक़े से रायदही में हिस्सा लें. वाज़ेह रहे कि औरंगाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से महाराष्ट्र पथ विक्रेता रोज़गार तहफ़्फ़ुज़ और स्ट्रीट वेंडिंग क़वानीन 2016 के तहत 25 जुलाई को शहर पथ विक्रेता कमेटी के इंतखाबात मुनक़िद किए जा रहे हैं. इसी सिलसिले में आज डिप्टी म्यूनिसिपल कमिश्नर और इलेक्शन रिटर्निंग ऑफिसर अपर्णा थेटे की सदारत में मुख्तलिफ पथ विक्रेता तंजीमों के नुमाइंदों के साथ एक मीटिंग मुनक़िद की गई. मीटिंग में NULM के प्रोजेक्ट मैनेजर सुरेंद्र पाटिल, भारत मोरे, भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर हॉकर्स यूनियन के राजीव हिराड़े, जन सहारा हॉकर्स संगठना के सलीमुद्दीन सिद्दीकी, संघर्ष कामगार संगठना के अहमद जलील, भारतीय बहुजन कामगार संघ के प्रशांत गायकवाड़, हॉकर्स जॉइंट एक्शन कमेटी के मुंजा भाऊ भाले समेत दीगर नुमाइंदे शरीक हुए. इस मौके पर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से इंतखाबात के तरीक़ाकार और इसके लिए की गई तैयारियों की तफसीलात पेश की गईं. हुक्काम ने बताया कि इंतखाबात को गैर जानिबदाराना और मुनज़्ज़म अंदाज में मुनक़िद करने के लिए जामे मनसूबाबंदी की गई है. अवामी बेदारी के लिए तशहीरी मुहिम चलाई जा रही है. इसके अलावा मुंतखबा नुमाइंदों और मुख्तलिफ तंजीमों के अहदेदारान के वीडियो पैगाम भी जारी किए जा रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पथ विक्रेता इंतखाबी अमल में हिस्सा ले सकें. ये इंतखाबात म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के ज़ेर इंतज़ाम 6 पोलिंग मराकज़ और 20 पोलिंग बूथ पर मुनक़िद होंगे. इन मराकज़ में भड़कल गेट, किराड़पुरा, मुकुंदवाड़ी, प्रियदर्शनी स्कूल और सिल्क मिल्स कॉलोनी समेत मुख्तलिफ म्यूनसिपल स्कूल्स शामिल हैं. इंतखाबात में मजमूई तौर पर 14,098 रजिस्टर्ड वोटर्स अपने हक़ रायदही का इस्तेमाल करेंगे, जबकि 8 नशिस्तों के लिए इंतखाब होगा. वोटिंग बैलेट पेपर के ज़रिए होगी और हर वोटर के लिए आधार कार्ड और सर्वे के दौरान जारी करदा यूनिक ID नंबर पेश करना लाजमी होगा, जिसके बाद ही वोट डालने की इजाज़त दी जाएगी. इजलास में मुनक़िदा मुख्तलिफ तंजीमों के नुमाइंदों ने इंतखाबात को कामयाब बनाने के लिए मुतालिका वार्ड्स के मुंतखबा अवामी नुमाइंदों और कारपोरेटर्स के ताउन से भी इस्तेफ़ादा करने की तजवीज़ पेश की. मानसून के आगाज़ के साथ ही न्यू वाटर सप्लाई स्कीम के कामों की खलई खुल गई. नक्षत्रवाड़ी इलाके में पंप हाउस में पानी दाखिल हो जाने के सबब इलेक्ट्रिक पंप ख़राब हो गया, तो दूसरी तरफ मुख्तलिफ मकामात पर 25 वाल्व्स के ख़राब होने की इत्तला है. नाज़रीन, न्यू वाटर सप्लाई स्कीम के तहत इजाफी पानी सप्लाई का आगाज़ किया गया था, ताहम 23 जून की शदीद बारिश के दौरान नक्षत्रवाड़ी के नए पंपिंग हाउस में छत और खिड़कियों से पानी दाखिल हो गया, जिससे बरक़ी पैनल में पानी भर गया. हिफाजती नुक्ते नज़र से जैकवेल से पंपिंग फौरी तौर पर बंद कर दी गई. उसके बाद वाटर प्रूफिंग और बरक़ी निज़ाम की जांच का काम जारी है. माहिरीन की तहरीरी मंजूरी मिलने तक पंपिंग दोबारा शुरू नहीं की जाएगी. दूसरी जानिब नई स्कीम की मरकज़ी पाइपलाइन पर नस्ब 87 एयर वाल्व्स में से 25 एयर वाल्व्स ख़राब पाए गए हैं. इन वाल्व्स की खराबी के सबब पानी के बहाव में मसाइल पैदा हो रहे हैं. महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण ने मुतालिका कंपनी के सीनियर हुक्काम और तकनीकी माहिरीन को फौरी जांच के लिए तलब किया है. ख़राब एयर वाल्व्स की तब्दीली का अमल शुरू कर दिया गया है और ज़रूरत पड़ने पर शट डाउन लेने की भी तैयारी की जा रही है. आइंदा 6 जुलाई को म्यूनिसिपल स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग मुनक़िद की जा रही है, जिसका एजेंडा आज शहर सेक्रेटरी ने जारी किया, जिसके मुताबिक
55 लाख रुपयों के अखराजात पर मुश्तमिल 5 तजावीज़ पर इस मीटिंग में तबादला ख्याल किया जाएगा। म्यूनसिपल ज़राए से मौसूल इत्तला के मुताबिक आइंदा 6 जुलाई को सुबह 11:30 बजे स्टैंडिंग कमेटी मीटिंग मुनक़िद की जा रही है। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के सिटी सेक्रेटरी ऑफिस के ज़रिए मीटिंग का एजेंडा जारी किया गया है। चेयरमैन अनिल मकरिये की ज़ेर सदारत मुनक़िद होने वाली मज़कूरा स्टैंडिंग कमेटी मीटिंग में लगभग 55 लाख रुपयों पर मुश्तमिल मुख्तलिफ 5 करारदादें पेश की गई हैं। इन करारदादों में 29,55,234 रुपये लागत से सीमेंट रोड की तामीर, फार्मासिस्ट मनोज रामदास ओबरहंडे की वालदा के इलाज के लिए 4,38,330 रुपये की इमदाद, असिस्टेंट कमिश्नर उदय दिगंबर राव मानवतकर की वालदा के इलाज के ज़िमन में 95,000 रुपये, क्लास 4 मुलाजिम प्रहलाद विट्ठल किरडे के हार्ट के ऑपरेशन के ज़िमन में 54,280 रुपये के अलावा चिश्तिया कॉलोनी इलाके में मुख्तलिफ रास्तों की तामीर के ज़िमन में 18,67,139 रुपये खर्च का शुमार है। 6 जुलाई को स्टैंडिंग कमेटी मीटिंग में इन करारदादों पर तबादला ख्याल के बाद मेंबरान उन्हें मंजूरी देंगे। नाजरीन, आपने कहावत तो सुनी होगी, चिराग तले अंधेरा। ठीक इस कहावत के मिज़दाक़ औरंगाबाद शहर के मेयर समीर राजुरकर और म्यूनिसिपल स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन अनिल मकरिये के ब्लॉक के साकिनान ही मुख्तलिफ परेशानियों से दो चार हैं। इसी ब्लॉक की एक और कारपोरेटर कीर्ति महेंद्र शिंदे की रहनुमाई में मुतासरा साकिनान के एक वफ़द ने आज म्यूनिसिपल कमिश्नर अमोल एडगे से मुलाकात की और उन्हें बताया कि सियासी दबाव में आकर वहां पानी सप्लाई करने वाली पाइपलाइन पर वाल्व नस्ब किया जा रहा है, जबकि पहले ही वो लोग पानी की किल्लत के संगीन मसले से दो चार हैं और पाइपलाइन पर वाल्व बिठा देने के बाद उनको सप्लाई किया जाने वाले पानी में मज़ीद कमी आने का अंदेशा है। लिहाजा उन लोगों ने इस तजवीज़ और कार्रवाई की सख्त अल्फाज में मुखालफत करते हुए म्यूनसिपल कमिश्नर से मुतालबा किया कि पानी सप्लाई करने वाले पाइपलाइन पर हरगिज़ वाल्व न लगाया जाए। शहरियान ने म्यूनसिपल इंतज़ामिया को ख़बरदार किया है कि अगर इस मंसूबे पर रोक न लगाई गई तो वो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के सामने भूख हड़ताल शुरू करेंगे। कारपोरेटर कीर्ति शिंदे की क़यादत में मकामी बाशिंदों के एक वफ़द ने आज मेयर समीर राजुरकर और म्यूनसिपल कमिश्नर अमोल एडगे से मुलाकात करके एक मकतूब पेश किया। वफ़द का इल्ज़ाम है कि बाद सियासी नुमाइंदे म्यूनसिपल अफसरान पर दबाव डालकर निराला बाज़ार नागेशवाड़ी रोड पर मौजूद 400 मिलीमीटर कुतर की वाटर लाइन पर वाल्व नस्ब करवाने की कोशिश कर रहे हैं। शहरियान के मुताबिक नागेश्वरवाड़ी, सुंदर नगर, स्वतंत्र सैनिक कॉलोनी और दीगर मुल्हक़ा इलाक़ों की तकरीबन 8 से 10 हज़ार आबादी पहले ही कम दबाव के साथ पानी हासिल कर रही है। पानी की फराहमी सुबह 6 बजे से शाम 4 बजे तक मरहलावार की जाती है, जिसके सबब उन इलाक़ों को ज़्यादा वक्त तक सप्लाई देना पड़ रही है। ऐसे में वाटर लाइन पर नया वाल्व नस्ब किए जाने से पानी की तकसीम मुतासिर होने और शहरियान को मज़ीद मुश्किलात का सामना करने का ख़दशा है। मकतूब में ये भी निशानदही की गई है कि साबिक़ म्यूनसिपल कमिश्नर जी श्रीकांत के दौर में भी इसी नौइयत की कोशिश की गई थी, ताहम अवामी मफाद को मद्देनज़र रखते हुए उस वक्त इंतज़ामिया ने मंसूबे पर रोक लगा दी थी। शहरियान और कारपोरेटर कीर्ति शिंदे ने मौजूदा इंतज़ामिया से भी मुतालबा किया है कि वो सियासी दबाव में आए बग़ैर साबिक़ा फ़ैसले की तर्ज पर इस मामले में मुदाखलत करे। इस मौके पर शहरियान ने स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन अनिल मकरिये से भी मुलाकात की और अपनी तशवीश से आगाह किया। वफ़द ने वाज़ेह किया कि अगर म्यूनसिपल इंतज़ामिया वाटर लाइन पर वाल्व नस्ब करने की कार्रवाई शुरू करती है तो वो एहतजाजन म्यूनसिपल कॉरपोरेशन दफ्तर के सामने गैर मुअय्यना मुद्दत की भूख हड़ताल शुरू करेंगे। म्यूनसिपल कमिश्नर ने वफ़द को यकीन दिलाया कि पानी की फराहमी में इजाफे से मुताल्लिक़ सूरत हाल का जायज़ा लेने के बाद ही इस मामले पर कोई हतमी फ़ैसला किया जाएगा। काबिल ज़िक्र बात यह है कि वार्ड नंबर 17 से मेयर समीर राजुरकर, स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन अनिल मकरिये और कारपोरेटर कीर्ति शिंदे समेत भारतीय जनता पार्टी का पैनल मुंतखब होकर आया है। ऐसे में हुक्मरान जमात के नुमाइंदों के ही वार्ड में वाटर लाइन पर वाल्व नस्ब करने के मामले को लेकर सियासी माहौल गर्म होता दिखाई दे रहा है।
मतदान केलेलं आहे ना? कॉन्टॅक्टचा प्रश्नच नाही. जेवढं पाणी सोडता तेवढं प्रेशर न सोडा. तुम्हाला विनंती आमची. मी करतो का ते? सर साहेब भेटणार जालना ज़िले में समग्र शिक्षा अभियान के अमले की लापरवाहियों के सबब ज़िले भर के छठी जमात के तलबा साइंस और तारीख़ मज़ामीन की निसाबी किताबों से अब तक महरूम हैं। वाज़ेह रह गए समग्र शिक्षा अभियान के तहत इमदादी और ज़िला परिषद स्कूलों में जमात अव्वल ता हश्तुम के तलबा को मुफ्त दरसी किताबें फ़राहम की जाती हैं। पढ़ूँ। शोबे तालीमात की जानिब से हर साल ये मनसूबा बंदी की जाती है कि तालीमी साल के पहले ही दिन तमाम तलबा को दरसी किताबें फ़राहम कर दी जाएँ, लेकिन इस साल दूसरी, तीसरी, चौथी और छठी जमात के निसाब में मुकम्मल तब्दीली की गई है, जिसकी वजह से बाज़ किताबों की फ़राहमी में ताख़ीर हुई है। ख़ास तौर पर छठी जमात के तलबा को तारीख़ और साइंस की किताबें अब तक मौसूल नहीं हो सकी हैं, जिसके सबब जालना के तलबा की पढ़ाई मुतासिर हो रही है। तलबा और वालिदैन ने जल्द अज जल्द किताबों की फ़राहमी का मुतालबा किया है ताकि तालीमी नुकसान से उन्हें बचाया जा सके। इस सिलसिले में जालना तालुक़े के 17 तालीमी मराकज़ में दीगर किताबों की तक़सीम मुकम्मल कर दी गई है। ग्रुप रिसोर्स सेंटर्स के मज़मून माहिर प्रफुल्ल राजे ने MCN से बात करते हुए बताया कि बाकी मानदा किताबें जल्द मौसूल होने की उम्मीद है और उन्हें फ़ौरी तौर पर तलबा तक पहुँचाया जाएगा। इस मामले पर ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर का भी मौक़िफ़ लिया गया, जबकि शोबे तालीमात की जानिब से यकीन दहानी कराई गई है कि किताबों की फ़राहमी का मसला जल्द हल कर लिया जाएगा। सर आपल्याला आतापर्यंत मराठी माध्यमाचे जे विषय बदललेले वर्ग बदलले इयत्ता दुसरी, तिसरी, चौथी आणि 6वीचे हे वर्ग बदललेले आहेत, त्यांची आपली पुस्तकं आलेले आहेत। फक्त इतिहास आणि विज्ञान हा अप्राप्त आहे आपल्याला। बाकी सर्व पुस्तकं आपण शाळा स्तरापर्यंत पोहोचवलेली आहेत। सर्व 17 केंद्रामध्ये आपले पुस्तकं गेलेले आहेत, म्हणजे सर्व ग्रामीण, खाजगी, जिल्हा परिषद, नगर सर्व शाळांपर्यंत आपले हे पुस्तकं आपण पोहोचत केलेले आहेत। तसेच आत्ता जे आपल्याला अप्राप्त जे आहेत ते सुद्धा आपले जे 1-2 दिवसामध्ये ते पण येतील आणि ते सुद्धा शाळापर्यंत पोहोचवण्यात येतील। कोणत्या कोणत्या वर्गाची पुस्तकं बाकी आणि किती टक्के वाटप झाले आतापर्यंत? आत्तापर्यंत एक 96% आपले वाटप झालेले आहे। एक 2 ते 3% फक्त काही विषय आपले बाकी आहे। इयत्ता 6वीचा विज्ञान आणि इतिहास हा बाकी आहे। त्याच पद्धतीनं 6वीचा वर्ग हा नव्याने बदलल्यामुळे तो आपल्याला प्राप्त आहे। तसे दुसरीचे विषय जो बदलला परंतु ते प्राप्त आहे आणि ते वाटप झालेले आहे। तिसरीचे पण आहे, 6वीचे सुद्धा आपल्याला म्हणजे 4थीचा पण आपला जो विषय बदललेला आहे, वर्गाचे अभ्यासक्रम बदलला परंतु त्याचीही आपल्याला प्राप्त आहे। फक्त इयत्ता 6वीचाच आपल्याला 2 विषय अप्राप्त आहेत आणि ते लवकरच आपण 2 ते 3 दिवसामध्ये शाळापर्यंत पोहोचणार आहोत। आम्ही प्रफुल्ल राजे, विषय साधन व्यक्ती, गट साधन केंद्र जालना। गुज़िश्ता 8 सालों से तहसील ऑफिस में डेपुटेशन पर भिजवाए गए टीचर को वापस बुलवाया जाए। इस मुतालबे पर तालुका कन्नड़ के कलंकी गांव के साकिनान ने आज ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर के दफ्तर पर अनोखा एहतजाज किया। ज़राए से मौसूल इत्तला के मुताबिक तालुका कन्नड़ के कलंकी गांव के ज़िला परिषद स्कूल के एक टीचर गुज़िश्ता 8 बरस से तहसील दफ्तर में डेपुटेशन पर तैनात हैं। मज़कूरा टीचर को दोबारा स्कूल में वापस भेजने के मुतालबे पर गांव वालों ने मंगल 30 जून को मुनफरद अंदाज में एहतजाज करते हुए बराह रास्त ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर के दफ्तर में ही स्कूल लगा दी, जिससे इंतज़ामिया में खलबली मच गई।
इस सिलसिले में देहातियों ने ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर सबाहत मोहम्मद नईमुद्दीन और एजुकेशन एक्सटेंशन ऑफिसर मनीष देवेकर को एक तहरीरी याददाश्त पेश की। कलंकी एक दूर अफ्तादा गाँव है जहाँ जमात अव्वल तहफ्तुम ज़िला परिषद स्कूल कायम है। मकामी अफराद के मुताबिक स्कूल के एक उस्ताद को 2018 में इंतखाबी उमूर के लिए तहसील दफ्तर पर डिप्यूटेशन पर भेजा गया था, लेकिन उनकी जगह दूसरे किसी उस्ताद का तकर्रुर नहीं किया गया, जिसके सबब तलबा की तालीम बड़े पैमाने पर मुतासिर हो रही है। गाँव वालों का कहना है कि बार बार मुतालबात के बावजूद मुतल्लिका टीचर को वापस स्कूल नहीं भेजा गया, लिहाजा इसके खिलाफ एहतजाजन उन्होंने स्कूल को ताला लगा दिया और तमाम तलबा को लेकर ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर के दफ्तर पहुंच गए, जहां बाकायदा क्लासेस मुनक़िद की गईं। तलबा ने बुलंद आवाज़ में पहाड़े सुनाकर पूरे इलाके की तवज्जो अपनी जानिब मबजूल करवा ली। एहतजाज के दौरान दोपहर के खाने के लिए तैयार की जाने वाली खिचड़ी भी दफ्तर के अहाते में चूल्हा जलाकर पकाई गई। इस गैर मामूली एहतजाज के बाद ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर सबाहत मोहम्मद नईमुद्दीन और एजुकेशन एक्सटेंशन ऑफिसर मनीष देवेकर ने तहसीलदार सारिका भगत से बात की, जिसके बाद मुतल्लिका टीचर को दोबारा स्कूल में वापस भेजने का फ़ैसला किया गया। इंतज़ामिया के तयक़ुन के बाद गाँव वालों ने अपना एहतजाज वापस ले लिया। इस मौके पर भगवान पडोल, मच्छिंद्र वाकले, गोकुल थोरात, रमेश थोरात, दिगंबर वानी, समाधान थोरात, प्रमोद थोरात, नितेश आगले, रामेश्वर थोरात, रमेश सोड़ुंके, गुलाब कदम और दीगर अफराद भी मौजूद थे। शहर की एक खातून टीचर ने मुताल्लिका पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई है कि उसके ही एक कलीग ने उसे बैरून मुल्क नौकरी लगाने का झांसा देते हुए उसके साथ ब्याह रचाया और लाखों रुपये मालियत के जेवरात लेकर रफू चक्कर हो गया। औरंगाबाद की सयाकिन एक खातून टीचर ने अपने ही साथी उस्ताद पर संगीन इल्ज़ामात आयद किए हैं। शिकायत के मुताबिक हुसैन अबू सोएदान नामी शख्स ने पहले दोस्ती की, फिर बैरून मुल्क मुलाजमत दिलाने का वादा किया। इसी बहाने उसने मुख्तलिफ औक़ात में खातून से लाखों रुपये वसूल किए। मुतासरा खातून का इल्ज़ाम है कि मुलजिम ने शादी का तयक़ुन दिया और तकरीबन 6 तोला सोने के जेवरात भी हासिल कर लिए। शिकायत में ये भी कहा गया है कि मुलजिम ने मुस्लिम रस्म व रिवाज के मुताबिक शादी का ड्रामा रचाया। शिकायत के मुताबिक रकम और जेवरात हासिल करने के बाद मुलजिम बैरून मुल्क चला गया और खातून से राब्ता मुनक़ता कर दिया। खुद को धोखाधड़ी का शिकार महसूस करने पर खातून ने पुंडलिक नगर पुलिस स्टेशन से रुजू किया। पुलिस ने हुसैन अबी सोडैन के खिलाफ धोखाधड़ी समेत मुख्तलिफ दिफ़ात के तहत केस दर्ज कर लिया है। हुक्काम का कहना है कि मामले की हर पहलू से तफ्तीश की जा रही है और मुलजिम की तलाश के लिए ज़रूरी इक़दाम किए जा रहे हैं। हुसेन अबूद सोयदान याच्यासोबत माझी ओळख एका शाळेमध्ये झाली आणि शाळेमध्ये झाल्यानंतर ओळख जास्त कामानिमित्त वाढली आणि त्यानंतर आम्ही बाहेर पण भेटायला लागलो। तर त्याने सांगितलं की हे जे शाळेमध्ये कमी जे पेमेंट आहे त्यावर तुम्ही काम करताय तर आपण अब्रॉड मध्ये जाऊन एक लक्झरियस लाईफ तुम्हाला मी देऊ शकतो आणि त्या आहे ना त्यानं माझ्याकडून जवळपास ऑनलाईन आणि कॅश स्वरूपात 3,80,000 रुपये घेतले। त्यानंतर काही ही गोष्ट ज्यावेळेस घरी कळाली तर घरी कळाल्यानंतर माझे पती आणि माझ्या फॅमिलीनं माझ्याशी पूर्णपणे कॉन्टॅक्ट तोडले। त्यानंतर आम्ही एक फ्लॅट रेंटनं घेतला। फ्लॅट घेतल्यानंतर त्यानं 19 एप्रिल रोजी माझ्यासोबत तो म्हणाला की अब्रॉडमध्ये जर राहायचं असेल तर तिथं मुस्लिम सोसायटी कम्युनिटी तिथे जास्त आहे आणि हिंदूंना एवढं लवकर जॉब वगैरे नाही देऊ शकणार ते, तर आपण एक मुस्लिम पद्धतीने लग्न करूया। मुस्लिम पद्धतीने त्यानं माझ्याशी कलमा वगैरे म्हणजे ते हे वाचायला काय पढणे वाचणे काय असेल ते, आणि 20 एप्रिल रोजी त्यानं माझ्याकडनं 6 तोळे सोनं घेतलं आणि सोनं आणि पैसे मिळाल्यानंतर त्यानं पूर्णपणे माझ्याशी कॉन्टॅक्ट 25 एप्रिल पासून तोडले। ज्यावेळेस ही गोष्ट मला कळाली की त्याचा मोबाईल स्विच ऑफ आहे तर मी त्याच्या ॲड्रेसवर गेले। ॲड्रेसवर गेले असता तिथे त्याची फॅमिली होती। वडिलांनी सांगितले की आम्हाला तो कुठं गेलेला आहे हे माहिती नाही। मी म्हटलं मग तुम्हाला माहिती नाही तर तुम्ही मिसिंग कंप्लेंट करा। तर नाही म्हणे मिसिंग कंप्लेंट वगैरे आम्ही काही करणार नाही,
कारण की मिसिंग कंप्लेंट ते कशासाठी करतील, कारण की ते फॅमिली पूर्ण त्याच्यामध्ये सामील होती. लग्न त्याचं 2दा झालेले. पहिली पत्नी शी डिवोर्स होऊन दुसरी पण सोबत राहत नाही असं तिथं घरी गेल्यानंतर मला कळालं की त्याची दुसरी पत्नी पण त्याच्या सोबत राहत नाही. एक मुलगा पण आहे त्याला. पोलीस केस केल्यानंतर रोज मी फोन करतेय की काय झालं सर, पुढे काही कळालं का, तो कुठे आहे काय नाही. तर त्यांनी फक्त एवढं सांगितलं की हो कळालं म्हणे, तो दुबईला पळून गेलेला आहे. पण त्यानंतर काहीच त्या केसमध्ये माझ्या इम्प्रुव्हमेंट मला दिसून येत नाहीये. रोज कॉन्टॅक्ट करतेय. तर माझी एकच मागणी आहे की तो टुरिस्ट विजावर गेलेला आहे आणि 3 महिन्यानंतर त्याचे जे इंडियामध्ये परत येण्याचे चान्सेस आहेत, तर तोपर्यंत लुकआउट नोटीस त्यांनी जारी करावी किंवा जे काही इन्व्हेस्टिगेशन ऑफिसर आहेत त्यांनी त्याला कसे तो त्या गुन्हेगाराला पकडण्यात येईल याच्यासाठी त्यांनी मला पूर्णपणे मदत करावी. बस एवढंच माझं सांगणं. छावनी में वाक़ लिटिल फ्लावर स्कूल में एक सनसनीखेज वारदात पेश आई है, जिसमें एक साबिक़ तालिब इल्म ने स्कूल में दाखिल होकर एक टीचर पर जानलेवा हमला कर दिया। पुलिस ज़राए से मौसूल इत्तला के मुताबिक छावनी इलाके के मारूफ लिटिल फ्लावर स्कूल में मामूल के मुताबिक तालीमी सरगर्मियाँ जारी थीं कि इसी दौरान एक साबिक़ तालिब इल्म स्कूल में दाखिल हुआ। इल्ज़ाम है कि उसने टीसी देने के मामले पर तनाज़े के बाद एक उस्ताद पर तेज़ धार चाकू से हमला कर दिया। हमले में शदीद ज़ख्मी होने वाले उस्ताद की शनाख्त विशाल फ्रांसिस दोसंग साकिन पेठे नगर के तौर पर हुई है। वो लिटिल फ्लावर स्कूल में बतौर उस्ताद खिदमत अंजाम दे रहे हैं। हमला इतना शदीद था कि वो खून में लथपथ होकर मौके पर ही गिर पड़े। वाक़े के फ़ौरन बाद स्कूल इंतज़ामिया और मकामी अफराद ने ज़ख्मी उस्ताद को इलाज के लिए घाटी अस्पताल पहुँचाया, जहाँ उनका इलाज जारी है। डॉक्टर्स के मुताबिक उस्ताद को शदीद ज़ख्म आए हैं। वाक़े की सीसीटीवी फुटेज सामने आई है, जिसकी बुनियाद पर पुलिस मुश्तबा साबिक़ तालिब इल्म के ख़िलाफ़ केस दर्ज करने की कार्रवाई कर रही है। वाक़े के बाद स्कूल में खौफ व हिरास का माहौल पैदा हो गया। छावनी पुलिस ने मामले की तहक़ीक़ात शुरू कर दी है और सीसीटीवी फुटेज समेत दीगर शवाहिद की जाँच की जा रही है। पुलिस का कहना है कि तहक़ीक़ात मुकम्मल होने के बाद मज़ीद क़ानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। छत्रपती संभाजीनगर हद्दीमध्ये पोस्ट छावणी येथे लिटल फ्लावर ही शाळा आहे. लिटल फ्लावर शाळेमध्ये एक विद्यार्थी 2023 साली नापास झाला होता. तर तो शाळेत आला आणि त्यांनी TC साठी प्राचार्यांना माग केली. त्यावेळेस कशामुळं त्याचा रिझल्ट हा चुकीचा आला होता, त्यासाठी वर्ग शिक्षकाला बोलवलं. वर्ग शिक्षकावर त्याचा पहिल्यापासून राग होता. त्या रागाच्या ह्यानी वर्ग शिक्षकांनी TC देवाणघेवाणवरून त्याचा वाद झाला. वाद विकोपाला गेला आणि विद्यार्थ्यांनी चाकू हा पहिल्यापासून शर्टाच्या मागे लपवलेला होता. त्याने चाकूने सर जे वर्ग शिक्षक होते त्यांच्या पोटात चाकू मारलेला आहे. जखमी असलेले सर सध्या शस्त्रक्रिया सुरू आहे. तब्येत विषयी काही सांगता येणार नाही असं डॉक्टरांनी कळवलेले आहे. सध्या विधी संघर्ष बालक आहे. जे ताब्यात घेतलेल्याचं वय 17 वर्ष आहे आणि त्याला ताब्यात घेतलेला आहे सध्या. जालना शहर के पुराना मोंढा इलाके की एक इमारत की बालकनी से एक 45 साल शख्स की लाश बरामद हुई, जिसके सबब इलाके में सनसनी फैल गई। ज़राए से मौसूल इत्तला के मुताबिक ये वाक़या जालना शहर के सदर बाज़ार पुलिस स्टेशन की हदूद में वाक़े पुराने मोंढा इलाके में पेश आया, जहां धनराज ट्रेडर्स की इमारत की बालाई मंजिल की बालकनी में एक शख्स की लाश पाई गई, जिसके बाद मकामी साकिनान की बड़ी तादाद मौके पर जमा हो गई। महलूक की शनाख्त अभय पापालाल चौधरी साकिन कड़बी मंडी करोमा सेंटर नई जालना के तौर पर हुई है। वाक़े की इत्तला मिलते ही सदर बाज़ार पुलिस स्टेशन के पुलिस कांस्टेबल TS कानोरे मौके पर पहुँचे और जाए वक़ूअ का मुआयना किया। बाद एज़ां पंचनामा मुकम्मल करते हुए लाश को पोस्टमार्टम के लिए ज़िला सरकारी अस्पताल भिजवा दिया गया। फ़िलहाल मौत की असल वजह मालूम नहीं हो सकी है। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट मौसूल होने के बाद ही मौत की वजूहात सामने आ सकेंगी। इस मामले में सदर बाज़ार पुलिस मज़ीद तफ्तीश कर रही है। खबरें ख़त्म करने से पहले आइए एक बार फिर नज़र डालते हैं आज की सुर्खियों पर। औरंगाबाद स्मार्ट सिटी बोर्ड की अहम मीटिंग मुनक़िद। म्यूनसिपल कमिश्नर अमोल एड़गे को स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट कंपनी का डायरेक्टर मुकर्रर करने समेत दीगर कई तजावीज़ की गई मंजूर। आइंदा 25 जुलाई को सिटी स्ट्रीट वेंडर्स कमेटी के 8 अरकान मुंतखब करने
کی جائے گی رائے دہی۔ انتخابات کی تیاریوں کا الیکشن آفیسر و ڈپٹی میونسپل کمشنر اپرنا تھیٹے نے لیا جائزہ۔ ووٹر سے پرامن طریقے سے رائے دہی کا عمل مکمل کرنے کی گئی اپیل۔ میئر اور اسٹینڈنگ کمیٹی چیئرمین کے حلقہ انتخاب میں جاری سیاست کے سبب مقامی ساکنان کو پریشانی کا سامنا۔ علاقے میں پانی کی قلت کے سبب پہلے ہی ہے ساکنان پریشان۔ سپلائی لائن پر والو بٹھانے کی متاثرہ ساکنان نے کی سخت مخالفت، میونسپل کمشنر سے کی نمائندگی۔ اور لٹل فلاور اسکول میں پیش آئی سنسنی خیز واردات۔ ٹی سی حاصل کرنے آئے سابق طالب علم نے ایک ٹیچر پر کیا جان لیوا حملہ۔ شدید زخمی حالت میں متاثرہ ٹیچر کو گھاٹی اسپتال میں کیا گیا شریک۔ سی سی ٹی وی فوٹیج کی مدد سے پولیس حملہ آور کی کر رہی ہے تلاش۔ اسی کے ساتھ MCN اردو نیوز اب یہیں ختم ہوتی ہے۔ کل پھر ملاقات ہوگی کچھ اور خبروں کے ساتھ۔ تب تک کے لیے میں قاضی محی الدین آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ خدا حافظ۔